संजय भाई. And third name is हमारा प्यारा and लाडला सतीश चिन्नादुरे. We called शक्ति. उनके पास तो जिम्मेदारी का डगला है, ऐसे हम बोल सकते हैं. एज ए वो कोर टीम हेड है, तो पूरी कोर टीम को मैनेज करते हैं, उसके साथ साथ सारे असिस्टेंट को मैनेज करते हैं. सुबह में आपके साथ बात करते हैं, लोगों के साथ जुड़ना उसको बहुत अच्छा लगता है. शाम को स्पीकिंग प्रैक्टिस में बहुत बार उसके और शेड्यूल भी क्लैश होते हैं, बट वो सारी चीजें मैनेज करके आपके सामने आप सब देख रहे हैं. तो ये तीनों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, एकदम दिल से हम लोग तालियां बजाए क्या. Thank you. Thank you to all guys. You are extraordinary people. Thank you, sir. This universe. Thank you. Sanjay and Bharat bhai. Good morning. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you, English club. Thank you, everyone. Thank you, Bharat bhai. Thank you, Bharat Bhai. Everyone. Thank you you. so much. Sanjay sir. Thank you. Okay, all right. So you three guys, I am saying that you are extraordinary people in this universe. That's why you are here. Thank you so much. So it's 7 o'clock. So I am inviting to today's leader, Mr. Rakesh Hirapra. Yes, Rakesh sir, over to you. Now 30 seconds. गुड मॉर्निंग still नहीं बोला remaining. यार. Sorry. गुड मॉर्निंग नहीं बोला यार. नहीं, हम थैंक यू ही बोलेंगे. अभी गुड मॉर्निंग के बाद में बारी अगली बैच में. आपको बोलना है बोल सकते हो, 30 सेकंड है हमारे पास. भीड़ में नहीं बोल पाऊंगा ना, भीड़ में चिल्ला नहीं पाऊंगा. गुड मॉर्निंग शक्ति सर. बस. यस राकेश सर, ओवर टू यू. थैंक यू सो मच. यस यस, यू आर ऑडिबल. Okay. So, can you share the PDF, please? Hello. Yes, Rakesh sir. Am I audible? You are audible, but some background noise was there. Oh, let me check. Just a second. Can you mute, please? Yes, your background voice is there. Now? Now it's so silent. Thank you, sir. Okay, so please share that PDF. Reading PDF, Rakesh? Yes, I have shared in the group. Page number 17, 14. No, that one. Just a second. Please check that ATM group. Yeah. Give me only 20 seconds. Okay. I'll share. Anyone have any feedback? N1, Ujas Kalsaria. Dean, right? Dean. Sorry? Yes, yes, No. Ajay. Okay. Rakesh, in the last, I want to announce something. No Just problem. 2 minutes. Just 2 minutes. So please give me a chance. All chances are yours, sir.
It's visible. Yes. sir. Page number I have written the page number. I think page number 8. I have little bit network issue. So it's workable little. So तब तक एक काम करते हैं, सब लोग है ना एक सेंटेंस लिखिए आज के दिन के बारे में चैट में. Everyone please write a sentence about today in chat. Everyone. There are 81 participants. सब लिखेंगे. How is the day today? Chat में, come on. Yes, Poonam. Rakesh bhai, which page you want to share presentation? I will share. 18. Number 8. 8 number. Wait. Okay. Hello. Yes. Sir, may I speak with my batch members? Yes, sure. Okay, thank you, sir. I think જો હું ગુજરાતીમાં કહું તો બધાને જલ્દીથી સમજાઈ જશે. મારું એવું કહેવાનું છે કે આ જે બેચ છે હવે પૂરી થવાની છે 2 દિવસમાં. અને આ જે ઇંગ્લિશ ક્લબ છે એમણે આપણને કેટલું બધું શીખવ્યું છે એ આપણે એક્સપ્લેન કરવાની જરૂરત નથી. આપણને બધાને જ ખબર છે કે આપણે કેટલું બધું આમાંથી મેળવ્યું છે. પણ આ જે ક્લબ છે એણે આપણને જે શીખવ્યું છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ શીખવ્યું છે. તો આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ કે સોસાયટીમાં કેટલા બધા જે છે એ ફ્રીના નામે ઘણું બધી વસ્તુઓ ચાલે છે કે તમને ઘણી બધી વસ્તુઓની એવી એડ જોવા કે સાંભળવા મળશે કે આ વસ્તુ તમને ફ્રીમાં મળશે, આ ક્લાસ તમારો ફ્રી છે. પણ જ્યારે આપણે એમાં એન્ટર થઈએ કે પછી એમાં એ વસ્તુને લેવાની કોશિશ કરીએ ત્યારે આપણને એવું કહેવામાં આવે કે ના આટલું તમે કરો તો તમને આ વસ્તુ મળે. તો આ જે ઇંગ્લિશ ક્લબ છે એને 100% ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપણા માટે કામ કર્યું છે, આપણને શીખવ્યું છે. તો હું એવું માનું છું કે મફતમાં મળેલી વિદ્યા ક્યારેય કોઈ દિવસ ઉપયોગમાં આવતી નથી. જો તમે આપણે કંઈક મેળવવું હોય અથવા તો શીખવું હોય તો કોઈને કોઈ રૂપમાં ગુરુ દક્ષિણા આપવી પડે. તો મારી બધાને વિનંતી છે કે જે આ લોકો એટીએમ કરીને જે છે એમાં આવવા માંગતા હોય તો વેરી ગુડ. પણ પોસિબલ હોય એટલું જે છે એ આપવું જોઈએ. એટલીસ્ટ એને ફીઝના રૂપમાં. બીજું તો આપણે એ લોકોને કશું આપી નથી શકવાના. એમનો જે મહત્વપૂર્ણ સમય આપણા માટે કાઢ્યો છે તો આભાર શબ્દ તો ઓછો છે એમના માટે. પણ જો જેનાથી પણ જેટલું પણ જે એમના હોય, આ લોકોએ ઇંગ્લિશ ક્લબ એવું છે કે મોટો દરિયો છે કે મોટો કૂવો છે, આપણી જેટલી કેપેસિટી હતી એટલું પાણી આપણે પી લીધું. એ લોકો તો આપણને બહુ કોશિશ કરી પીવડાવવાની, પણ આપણામાં જેટલી ક્ષમતા હતી એટલું લીધું. તો મારી બધાને વિનંતી છે કે જો જે પણ જેનાથી શક્ય હોય એ જે છે જિગ્નેશ સરને પણ વિનંતી કરીશ કે બેંક ડિટેલ્સ આપે અને જેની જે સમર્થતા હશે એ લોકો એમાં ઇટ ઇઝ નોટ ડોનેટ પણ જસ્ટ આપશે, ફીઝ આપશે. થેન્ક યુ. Thank you. Thank you very much for your kind words. आज थोड़ा लेट हो गए हैं, 8 मिनट हम लेट चल रहे हैं. आज
अब तक तो थोड़ा स्पीकिंग वगैरह हमने किया था लेकिन रीडिंग नहीं किया था साथ में। सो उस पार्ट को भी इम्प्रूव करना है। सो ज्यादा बात नहीं करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आएंगे। और पूनम मैम ने जो कहा है उसके बारे में ऐसा हो तो लास्ट में जिग्नेश सर थोड़ा शेयर करेंगे। यस, सबसे पहले कौन इसको रीड करेगा? G54। Hello, अमर sir. सिपाही। Hello, sir. Good morning, everyone. हम्म। Alice in the Wonderland. One एलिस day, लैंड। Alice was lying under a tree, listening to her sister reading a story. हम्म। Suddenly, she saw a white rabbit हम्म। scamper स्कैम। by. हम्म। Scamper by. He had pink eyes and was wearing a blue coat. वेरिंग। Wearing parallel to blue coat. हम्म। He took out a big watch from his waistcoat pocket, and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग? He said, "Oh dear." એને કીધું અરે पहले से फर्स्ट। one day એક દિવસ Alice was lying under the tree. ઝાડ નીચે Alice સૂતો હતો and listening to her sister reading a story. એની બેનની જે એને એની બેન જે સ્ટોરી વાંચતી હતી ઈ સાંભળતો હતો એમ. यस ओके। वन डे एक દિવસ બરાબર। એલાઇસ વોઝ લાઇંગ અંડર અ ટ્રી। લાઇંગ એટલે કેવું સૂતા ન હોય પણ પડેલા હોય ને ખાલી એવું એને લાઇંગ કહેવાય। જાગતા हाँ સુતા નોટ સ્લીપિંગ. ऐसा मतलब लेटे हुए थे। एलिस वो हाँ। लेटा हुआ था अंडर अ ट्री, एक ઝાડ पेड़, નીચે लिसनिंग टू हर सिस्टर। किसको सुन रहा था? એની उसकी બેન જે बहन को सुन સ્ટોરી रहा था। વાંચતી હતી. अच्छा, वो बहन क्या कर रही थी? रीडिंग ए स्टोरी। उसकी सिस्टर को वो स्टोरी पढ़ते हुए सुन रहा था और लेटा हुआ था। राइट, ओके आगे। સડનલી તરત ઓચિંતાના she saw a white rabbit scamper by. એણે એક સફેદ કલરનું સસલું જોયું. he had pink eyes. स्कैम्पर बाय मतलब? હે स्कैम्पर बाय मतलब? સ્કેમ્પર કૂદતું. मतलब हड़बड़ाते हुए जो दौड़ता है ना, वो इधर उधर भागता दौड़ता, वैसा एक रैबिट को देखा है। હા, he had pink eyes. એને પિંક કલરની આઈઝ હતી. ઓકે। and was wearing a blue coat. એને બ્લુ કલરનો કોટ પહેરેલો હતો. વેરી ગુડ। he took out a big watch from his waistcoat pocket. he took out, એને બહાર કાઢ્યું એમ. big watch from his waistcoat pocket. એને એક વોચ મોટી ઘડિયાળ બહાર કાઢી. કોટના ખીચામાંથી બહાર કાઢી. ઓકે। and as he hurried away, as he hurried away, એને આમ વાર શું કહેવાય hurried એટલે પેલાથી hurried as he hurried away। hurried away.
he said, oh dear, I will be too later. અરે એને ઘડિયાળમાં જોયું અને પછી અફસોસ વ્યક્ત કર્યો કે હું બહુ લેટ થઈ ગયો છું ઘડિયાળમાં જોઈને પછી. ओके, तो सडनली शी सो अ व्हाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. अचानक उसने देखा एक जो खरगोश था सफेद रंग का, वो इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, जल्दी में है. स्कैम्पर बाय मतलब नजदीक से पास होता हुआ, बाय मतलब. ही हैड पिंक आईज, उसकी कैसी आईज थी? पिंक. एंड वाज वेयरिंग अ ब्लू कोट. देखो, हैड पिंक मतलब हैव का पास्ट है, उसके पास होना, हैड पिंक आईज, राइट. आई हैव होता है ना, उसकी तरह ही हैज का पास्ट हो गया ही हैड, उसके पास था कुछ. ही हैड पिंक आईज एंड वाज वेयरिंग, उसने पहना हुआ था, उसकी शुरू एक्टिविटी थी, ब्लू कोट. ही टुक आउट, उसने बाहर निकाली, अ बिग वॉच, बड़ी सी घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट. वेस्ट कोट मतलब क्या? आप वो पिक्चर देखिए, इसमें उसने ब्लू कोट के नीचे जो रेड कलर का जो जैकेट जैसा पहना है ना, उसको वेस्ट कोट बोलते हैं. उसमें से एक घड़ी निकाली, बराबर. कैसे निकाली? एज ही हरीड अवे, जो वैसे भागते भागते उसने वो घड़ी निकाली. एंड कहा, ओ डियर, आई विल बी टू लेट. अरे मैं, आई विल बी, मैं हो जाऊंगा. टू लेट मतलब बहुत ज्यादा, लेट हो जाऊंगा. ओके, थैंक यू. चलो, और Thank you. कौन पढ़ेगा? Thank you. Yes, Rakesh, can I add something here? श्योर श्योर श्योर. तो जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स है ना, वो भी एक यहाँ पे रीड कर रहा है पार्टिसिपेंट, तो बाकी के पार्टिसिपेंट्स भी म्यूट रह के वहां पे रीड करेंगे. वो बिल्कुल. करेंगे कि आप अपना प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे कर रहे हो. जैसे यहाँ पे हरीड लिखा था, तो अभी वो प्रोनाउंसिएशन आप कैसे कर रहे थे. यहाँ सेड लिखा है, डियर लिखा है, तो राइट राइटिंग लिखा है, तो वो आप अपना चेक कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में करेक्शन होगा. या दैट्स इट. विकास नाथानी. विकास नाथानी करके किसका है? Yes. यस, रीड करिए आगे. She thought there was something very different about this rabbit. It could talk. It could talk. It wore a red waistcoat and it cuddled a watch. Alice Carried a wondered. carried a watch. Carried a watch. Alice wondered. A talking rabbit. A rabbit who wear a waistcoat. Alice was burning with curiosity, Curiosity. and she followed the white rabbit. यस, ओके. क्या मीनिंग है? Was something different about it. वो रैबिट सबसे अलग दिख रहा था. नहीं, सबसे पहले शी थॉट का करिए. शी थॉट का क्या मतलब होता है? तेणीने विचार આવ્યો કે सोचा, उसने सोचा. थिंक का पास्ट है, शी थॉट. सोचा. आगे अब क्या सोचा? she thought उसको there was something very different about this rabbit. क्या सोचा? Something very different. कुछ डिफरेंट है सब रैबिट में से. जो उसको रैबिट देखा था वो थोड़ा डिफरेंट था. about this rabbit. She thought there was something very different about this rabbit. उसने सोचा कुछ है. क्या है? Something very different. कुछ बहुत अलग है. किसके बारे में अलग है? About this rabbit. इस खरगोश में या फिर इस खरगोश के बारे में कुछ बहुत अलग है. उसने सोचा अलग है. आगे. It could talk. वो एक बात कर सकता है.
बात कर सकता था, कोड है। हाँ हाँ, कोड बात कर सकता था। It wore a red waistcoat and it carried a watch. ते रेड कलर का वेस्ट कोस्ट और एक वॉच कैरी कर रहा था। उसने एक WEAR, उसका पास्ट फॉर्म है WORE, पहनना। तो वो इसीलिए हाँ, अलग थोड़ा था। डिफरेंट लग रहा था कि ये बात कर रहा था, उसने कपड़े भी पहने थे, मतलब रेड कलर का वेस्ट कोट पहना था और कैरीड अ वॉच, क्या लेकर चल रहा था, क्या कैरी कर रहा था अपने, और एक घड़ी। घड़ी। अब आगे। टॉकिंग अ रैबिट, a rabbit who wears a waistcoat. नहीं, एलिस वंडर्ड, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, एलिस वंडर्ड, बाद में देखिए कॉमा है, मतलब थोड़ा ठहरना है। अ टॉकिंग रैबिट, एलिस ने सोचा, Alice Wonder. एक बोलता हुआ खरगोश, ऐसा कहना चाहते हैं, राइट। इसी तरह मतलब जो भी एक्सप्रेशन है उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए पढ़िए, आप सही जा रहे हो। और a rabbit who wears a waistcoat, क्या रेबिट वेस्टकोट पहन सकता है? नहीं नहीं, वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो एक्सक्लेमेशन है, मतलब आश्चर्य होते हैं ना। टॉकिंग हाँ, रैबिट, पहन सकता है। रैबिट वो वेयर्स अ वेस्ट कोट, मतलब एक ऐसा खरगोश जो वेस्ट कोट कोट वेस्ट पहनता हो। हम्म, Alice was burning with curiosity. Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. Alice उसको देख के जल रहा था और उसको फॉलो भी कर रहा था, रैबिट को। जल रहा था मतलब कैसे जल रहा था, विथ क्यूरियोसिटी, मतलब वो क्यूरियोसिटी। जो अंदर से उसको जो क्वेश्चन हुए ना कि एक रैबिट बात कर सकता है, उसने वेस्ट कोट पहना है, उसके बाद घड़ी है, तो उसके दिमाग में ऐसा क्यूरियोसिटी, मतलब इंग्लिश में या हिंदी में गुजराती में उसको जिज्ञासा बोलते हैं, वो जानने की इच्छा। तो वो उसके साथ वो जल रहा था, उसके अंदर वो आग लगी थी कि ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और उसने शी फॉलोड, अभी देखो एलिस लड़की है या लड़का है, लड़की है। इसलिए शी है, राइट। तो शी फॉलोड द राइट। वाइट रैबिट, तो उसने क्या किया फिर, व्हाइट रैबिट को फॉलो किया। व्हाइट रैबिट को फॉलो किया। ओके, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट कर दीजिए। पढ़ूं मैं सर? just a second. C6 सौम्या सभाया। The rabbit started running and दो डिवाइस में से है, आप एक डिवाइस में से बंद कर दीजिए। okay sir. The rabbit started running and Alice followed the rabbit. The rabbit suddenly plopped down a large rabbit hole. Alice jumped into the rabbit hole too. The rabbit went go down and down and down and down into the rabbit hole. Alice said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen? I must be getting somewhere near the center of the earth." She wondered, "Will I slip through the earth to the other side?" Okay, meaning. The rabbit started running. The rabbit started running. Started. रैबिट ने भागना शुरू किया। Very good. And Alice followed the rabbit. और Alice ने उसका पीछा किया।
The rabbit suddenly propped down a large rabbit hole. Rabbit अचानक से नीचे बड़े रैबिट होल में चला गया. रैबिट सडनली पॉप डाउन मतलब अंदर वो कूद गया, जंप कर गया, पॉप डाउन कर गया रैबिट हॉल में. कैसा रैबिट हॉल था? बड़ा सा. Yes. Okay. Alice jumped into the rabbit hole too. Alice भी रैबिट हॉल में जंप किया. Alice jumped into the rabbit hole too. उसने टू मतलब उसने भी जंप कर दिया रैबिट हॉल में. मतलब रैबिट की जो ये रहने की जगह होती है वहां पे. यस. The rabbit went down and down and down and down. रैबिट जाता ही गया, जाता ही गया, जाता ही गया. नीचे 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 जाता ही गया. Into the rabbit hole. उसके घर में. Alice said aloud, "Where am I?" Alice ने कहा, मैं कहाँ हूँ? जोर से. जोर से. Alice said aloud. जोर से कहा, Where am I? मैं कहाँ हूँ? Yes. How many miles down I fallen? मैं कितनी माइल्स तक नीचे गिरूंगी? Have I fallen? गिर गई हूँ. I must be getting somewhere. मैं कहीं तो हूँ. Near the center of the earth. अर्थ के बीच में. नहीं, I must be getting मतलब मैं कहीं पे आ गई हूँ. कहाँ पे? Somewhere near the center of the earth. उसने वो इतना नीचे गई उसको लगा कि मैं जो अर्थ का जो सेंटर है ना उसके आसपास कहीं आ गई हूँ. गिरते 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 ऐसा. I must be getting somewhere. अब आप सबके लिए जो भी सुन रहे हैं ना उनके लिए एक सूचना है, ध्यान से देखिएगा. There are 78 participants. ये स्टोरी को पढ़ के हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, राइट? बट हमें इसमें जो नए नए फ्रेज आते हैं, नए नई सेंटेंस पैटर्न्स जो आती है वो सीखनी है और वो हम आगे कहाँ इसको यूज कर सके वो देखना है, राइट? सिर्फ स्टोरी की स्टोरी लाइन में या एक आध सेंटेंस ट्रांसलेशन में नहीं ध्यान देना. ये सबके लिए है. जो भी देयर आर 77 पार्टिसिपेंट्स जो है ऑनलाइन, उन सबके लिए है कि सेम टू सेम सेंटेंस पैटर्न आप कहाँ यूज कर सकते हो. उसमें फ्रेज आते हैं जैसे कि गेटिंग, मस्ट बी गेटिंग समवेयर ये लिखा है. तो हमको अगर आप उसका लिटरल मीनिंग निकालने जाओगे कि एक एक वर्ड का अलग, तो कुछ मीनिंग नहीं निकलता है. लेकिन उस पूरे 3-4 वर्ड्स का जो एक समूह होता है उसका कोई मीनिंग होता है, वो हम दूसरी कौन सी जगह पे यूज कर सकते हैं, ये सोचते हुए इस स्टोरी को आगे ले जाना है, राइट? सो यस, उसको ऐसा लगा कि मैं कहीं पे आ गई हूँ. किसके आसपास आ गई हूँ? समवेयर, कहीं पे, नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का जो केंद्र है वो उसके आसपास तो नहीं आ गई इतना गिरते 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 गिरते. यस, आगे सौम्या. She wondered. वो डरी. She wondered, उसने सोचा मतलब वो आश्चर्यचकित हो गई. Will Yes. I slip through the earth to the other side? मैं क्या, उसने सोचा कि मैं क्या अर्थ के दूसरी तरफ हूँ. नहीं, will I slip मतलब वो सरक रही है ना, नीचे नीचे जा रही है, तो उसको लगा कि कहीं सरकते 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 कहीं मैं जो पृथ्वी है उसकी अदर साइड तो नहीं चली जाऊंगी. ऐसा. थ्रू, देखिए ये एक वर्ड है, will I slip through, किसी से एकदम कंप्लीटली पास हो जाना, बीच में से, राइट? आप नहीं कहते कि इस बुक को गो थ्रू कर लो मतलब इस बुक में से आप पास हो जाओ, राइट? आई पास्ड थ्रू दिस टनल, मैं इस टनल से कंप्लीटली पास हो गया. तो एक छोर से दूसरे और अगर छोर की तरफ आप जा रहे हो, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ बीच में से पास होके, तो उसको थ्रू बोलते हैं, राइट? विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड मतलब मैं स्लिप होकर
पृथ्वी के दूसरे एंड पे चली जाऊंगी या क्या, दूसरी साइड पर चली जाऊंगी या क्या, ऐसा। ओके, चलो कौन आगे? थैंक यू सौम्या, बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया, कीप इट अप। D149 साबिना शेख। Hello, I am यस audible, sir. यस। Trumpy Alice landed on a pile on the leaves. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. Thumb. Alice landed on a pile of the leaves. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. It disappeared, saying, "Oh, my ears and whiskers! How late it's getting." Alice stood up and showed a small door about 15 inches high. It was too small for her to go through. She saw a glass table with a golden. ठीक है, दो दो पैराग्राफ कर लेते, बाद में जाएंगे हम ठीक है से। सर। हाँ, Thumb Alice landed on the pile on dry leaves. सूखा पांदड़ा पर पहले थम Alice पे तो landed. आवाज है, हम कहते हैं ना, ये दम दे बड़ी करके वो थम। thumb करके गिरी है। Pile on the day leaves. ત્યાં પાંદડા પર dry થાય છે. Alice landed, Alice लैंड हुई, Hello? मतलब पर आई। यस, आपका इंटरनेट शायद वीक है, मैं जो बोल रहा हूँ Weak वहाँ है। लेट पहुंच रहा है। हाँ, yes sir. I check it sir. ओके, नो डोंट वरी डोंट वरी। अभी क्या है मीनिंग सुन लीजिए। अलाइस लैंडेड, अलाइस लैंड हुई, मतलब जमीन पर आई। हाँ, ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। दे रहा है। वो बोलता है ना, एक लेयर्स लेयर्स बने होते हैं ना, कि हाँ, पत्ते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक एक के के ऊपर ऊपर एक, हाँ, तो ऐसे लेयर, उसको पाइल बोलते हैं। फाइल उसको ड्राई लीव, सूखे पत्तों का सूखे जैसे पत्तों का स्तर था, मतलब जत्था था, उसके ऊपर वो गिरी। वो गिर पड़ी। हाँ, यस, आगे। આગે શું લુક્ડ અરાઉન્ડ તે આજુબાજુ જોઈ છે. તે આજુબાજુ જોઈ છે ને ક્વિકલી એન્ડ સડનલી તો વ્હાઈટ રેબિટ અગેન. ત્યાં સડનલી અચાનક જ ત્યાં તે રેબિટ આવે છે. प्लीज लुक्ड अराउंड मतलब आसपास देखा, कैसे देखा? हाँ, आसपास देखा. हाँ, आसपास उसने आसपास देखा तो वहां पर अचानक ही वो व्हाइट रेबिट आ गया. एंड सडनली सो द व्हाइट रेबिन अगेन, मतलब और हेलो, अचानक ने वो व्हाइट सडनली शो रेबिन को फिर से देखा, अगेन दोबारा अचानक से व्हाइट रेबिट आ गया. देखा। आ गया नहीं, उसने देखा, सडनली सो द उसने व्हाइट अगेन, दोबारा देखा। दोबारा देखा. आगे। ઇટ ડિસઅપિયર સેઇંગ તે ઉદાસ થાય છે અને બોલે છે, नो नो, इट डिसअपियर्ड, वो ઓ માય गायब। ઈયર્સ. डिसअपियर हो जाना मतलब गायब हो जाना। क्या कहते कहते गायब હેલો, हो गया, पढ़िए आप। ઓ માય ઈયર્સ એન્ડ whiskers. हम्म, बोलता है હેલો, ओ कोई। हाँ, आपका इंटरनेट शायद डाउन है, तो ઇન્ટરનેટ. હા, ઓકે સર, कोई આઈ दिक्कत नहीं। ચેક ઇટ સર. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कहता है ओ माय ईयर्स ઓકે. एंड विस्कर्स, अरे मेरे कान, और विस्कर्स मतलब जो मूछें होती है ना, खरगोश में, बिल्ली में, राइट, उसको विस्कर्स बोलते हैं। हाउ लेट्स इट गेटिंग, whiskers. मतलब ये इतना देर क्यों हो रहा है, राइट। इतना देर क्यों हो रहा. यस, आगे। हाँ, राइट. અલાઇસ stood up and show a small door. અલાઇસ જોઈ છે એક સ્મોલ ડોર એને દેખાય છે. एलाइस सबसे पहले खड़ी 15 होती है, एलाइस स्टूड अप। તેને 15 ઇંચ હાઈટ ઉપર એક खड़ी होती है और एक दरवाजा देखती है जिसकी हाइट होती है कम 15 इंच। यस। इट वो 15 इंच के वो फीट के ऊपर है. वो दिख रहा है, उसको दिख रहा है, उसको दिख रही है.
It was too small for her to the throw. Hmm. It was too small for her to go through. It was too small. वो इतना ये छोटा जुए था, से बहुत छोटा था कि उसके लिए जो पास होना था ना, गो थ्रू होना, मतलब एक उस गेट से पास होना है उसको, go through. हाँ 15 इंच का है, तो वो उसके लिए बहुत छोटा था कि हाँ भाई 15 इंच के हॉल में से वो या फिर दरवाजे में से मैं कैसे पास हो सकती हूँ, राइट? कैसे पास हो वो सोच रही है. ओके, थैंक यू। एक बार पूनम जी का कहना है कि एक She बार फिर saw a से हो glass जाए। table with a guard. ओके, थैंक यू। अब आप म्यूट कर सकते हैं। हेलो. हाँ, थैंक यू। अब आप म्यूट कर सकते हैं। एक बार फिर से पैराग्राफ देख लेते हैं। हमने देखा ना कि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अर्थ के दूसरी साइड तो नहीं आ गई, तो वो गिरती है। एलाइस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, मतलब एलाइस लैंड करती है पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, मतलब जो सूखे पत्ते होते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, नहीं जंगल में वो लेयर्स बन जाते हैं, वो ऐसे सूखे पत्तों के ऊपर वो गिरती है। शी लुक्ड अराउंड क्विकली, उसने जल्दी से आसपास देखा और सडनली सो द व्हाइट रैबिट अगेन, उसने वो जो व्हाइट रैबिट जो बाहर देखा था उसको अगेन देखा, रिपीट। इट डिसअपीयर्ड सेइंग, फिर से वो व्हाइट रैबिट वापस गायब भी हो गया, बोलते हुए क्या बोला उसने? ओ माय ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरे कान और मेरी मूछें कहाँ गई? हाउ लेट इट्स गेटिंग, ये इतना ये देर ही होते जा रहा है, इतना देर क्यों हो रहा है? उसका कहने का मीनिंग यह है, इट्स गेटिंग लेट, ये लेट हो रहा है। अलाइस स्टूड अप, अलाइस खड़ी हुई और सो स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई, खड़ी होती है और देखती है एक डोर है जिसकी हाइट है 15 इंच। इट वाज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, ये उसको वहां से पास होने के लिए बहुत छोटा था। इट वाज टू स्मॉल, इतना छोटा था कि वो वहां से पास नहीं हो सकती थी, राइट? यस दक्षा, आगे E39। Yes, sir. She saw a glass table with a नेक्स्ट पेज प्लीज। golden key on it. पहले पढ़ लूं या ट्रांसलेट भी करती जाओ? पढ़ लीजिए, बाद में ट्रांसलेट। She tried the little golden key in the lock, and to her delight, it fitted. Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. But she could not even get her head through the doorway. Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. ओके, previous page please. Yes. She saw a glass table with a golden key. તેણીએ એક ગ્લાસ ટેબલ પર ગોલ્ડન કી પડેલી જોઈ. She tried the little golden key in the lock, and to her delight it fitted. એણે golden key નો use કરીને લોક ખોલવાની ટ્રાય કરી, લોકમાં ટ્રાય કરી, and to her delight it fitted. बनती ट्राई करी, आई थिंक मीनिंग. एंड टू हर डिलाइट, मतलब उसको खुशी हो उस तरीके से, मतलब नहीं जैसे कि गुड न्यूज मिला उस तरीके से कि इट फिट, लग गई चाबी, इट फिटेड, वो फिट हो गई। ओके. Alice opened the door and looked into the loveliest garden. Alice ने दरवाजा ओपन किया and looked into the loveliest garden, અને એમણે એક સુંદર ગાર્ડન જોયો. She had ever seen, ક્યારે ની જોયેલો ગાર્ડન જોયો. How she longed, कभी देखा ही नहीं था वैसा। how she longed to be among those beds of bright flower and those cool fountains.
ફ્લાવર્સ નું બેડ અને કુલ ફાઉન્ટેન, ઠંડો ફાઉન્ટેન જોઈને આશ્ચર્ય થયું. મતલબ how she longed to be among those bed and bright flowers and those cool fountain. मतलब वो उसको जो डिजायर होती है ना, वो लॉन्ग का हम्म। मीनिंग ऐसा होता है कि उसको हम्म। मतलब उसको इच्छा थी कि वो भी वो जो वहां पे उसको दिख रहा था उसके बीच में वो हो, वहां जो फ्लावर्स दिख रहे थे, वो कूल मतलब जो ठंडे फाउंटेन। ठंडे फव्वारे दिख रहे थे, फाउंटेन्स, काश वो भी उसके बीच में होती। अभी तो वो सिर्फ देख रही है ना। But she could not even get her head through the doorway. Head मतलब छुपना ना। हेड है, सर, HEAD है, हाइड नहीं है। ओके, हेड सर उसका माथा। She could not even get her head through the doorway. એ એનું માથું બી અંદર પસાર ન કરી શકી, I think. एग्जैक्टली she could not even, मतलब ऐसा भी, मतलब इवन गेट हर हेड, मतलब बॉडी की बात तो अलग है, बट उसका सर तक वो डोरवे में से, दरवाजे के रास्ते में से वो पास नहीं कर सकती थी। Oh, how I wish. હું કેવી રીતે વિશ કરી શકું? I could become smaller. હું કેવી રીતે નાની બની શકું? She exclaimed loudly. એવું જોરમાં ચિલ્લાઈને બોલી કે oh, how I wish. હું વિશ કરું છું, હું કેવી રીતે વિશ કરું કે હું નાની થઈ શકું? एग्जैक्टली, यस। ओके, ये स्टोरी कहाँ से ली गई है वो भी पढ़ लीजिए। Adapted from Alice in Wonderland by Lewis Carroll. Lewis Carroll. Thank you. Okay, so ये कोई नर्सरी या उसकी बुक लग रही है। ये एनसीईआरटी की बुक है। तो कौन की स्टोरी को एक्सप्लेन करेगा अगेन इन इंग्लिश, अपने वर्ड्स में? What was that in the story? Who will explain? Raise your hand. Yes, Satish. कुल वंडर्ड, आश्चर्यचकित लगने वाला रैबिट है। इंग्लिश। Sir, can't I do? Why can't you? You can. In this story, the wondered rabbit named Alice and a girl. The story was become that the rabbit hurried and tried to show his watch. And she run fast and go to elsewhere in the hall, and the girl followed him. They go out through the hall. Girl wondered that how can rabbit spoke and runs like this. That's like a story. I try my best, sir. Don't worry. It was actually easy story. Don't worry. Yes, Jignesh sir, you wanted to add something. Yes, I want to add here. We decided for the next batch, हमने decide किया है next batch के लिए कि हम अभी नए बैच में 15 साल के ऊपर के बच्चों को ही, मतलब ऊपर के स्टूडेंट को ही लेंगे, राइट? क्योंकि उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटी है, वो पढ़ रहे हैं, तो हम जिनको जरूरत है उनको इस बैच में लेंगे। तो ये डिसाइड हुआ है। और जो रिपीट, मतलब ये बैच में है 15 साल के नीचे, उनको हम जरूर लेंगे रिपीटर्स के तौर पे। पर नए में हम 15 साल से ऊपर के लोगों को ही रजिस्टर करेंगे। या दैट्स आई वांट टू ऐड हियर।
Okay. So if anyone wants to share his or her experience, आज कैसा लगा और स्टोरी कैसी लगी, whatever. Yes, Daksha. सर अचानक से ये पढ़ने में थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है उसका क्या साउंड करना है, और कहीं एक भी बार नहीं पढ़ा हो वो पढ़ने में डायरेक्टली मीनिंग और वो भी नहीं पता चलता, उसका भी ख्याल आता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। पढ़ने से ही आइडिया आते हैं कि कितने नए नए वर्ड मिलते हैं जो जिसका मीनिंग हमें पता है लेकिन पढ़ते टाइम मीनिंग नहीं पता चल रहा है। वो भी हमें आइडिया आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी एक पॉइंट है, जैसे कि आज तक आपको कई बार बोला होगा कि भाई आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इतने बिजी होते हैं या फिर उसको इग्नोर करते हैं कि ये तो ठीक है बोलते रहते हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हो तब उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो अलग होता है कि भाई 4 नए वर्ड्स मिले, 4 नई सेंटेंस पैटर्न्स मिल गई, उसको कैसे बोलना है वो मिल गई। सो दिस फॉर एवरीवन। तो आप पढ़िए, और ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पीडीएफ लिखेंगे तो एनसीईआरटी के सारे टेक्स्ट बुक आ जाएंगे। आप जब भी फ्री हो, घर पे फ्री हो, आप कहीं जा रहे हो, बस में हो, कार में हो, ट्रेन में हो, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। और ये जो बुक थी मैं आपको बताऊं, ये 4th स्टैंडर्ड की बुक थी इंग्लिश में, राइट? तो अगर वो बच्चे पढ़ सकते हैं तो हम भी पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इट्स 7:45। कल कुछ और एक्टिविटी करेंगे, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि जरा 70 पार्टिसिपेंट जो है वो कंसिस्टेंट रोज आप आ रहे हैं, राइट? और आप सब बनाए रखे। कई बार क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि यार मेरा नंबर आया नहीं, 2-3 लोगों का ही नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप वहां बैठे बैठे भी अगर आप फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जिसने जो बोला है उसको मिली है, राइट? सो आई डोंट थिंक, आप आते रहिए। ये हमारा, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, लास्ट वीक है। रोज कुछ ना कुछ नई नई एक्टिविटीज करेंगे, उसमें से हमको भी कुछ मिलेगा, आपको भी कुछ मिलेगा। और थैंक यू वेरी मच। कोई भी Bye everyone. Goodbye. Bye. Goodbye. Bye bye guys. Bye. See you. Bye Nina Ben. Bye Bye Barsha bye. Ben. Bye. Goodbye. Bye bye. Bye bye everyone. Bye everyone. Bye. Bye. Bye bye. Bye Ethel Babi. Arjo. Bye bye. Bye bye. Bye Jackie. Bye guys. Jackie. Naresh, can you close the meeting please? Yes, yes. Bye Varsha.